Ma'am, we are live now. Um, so, hope everyone is doing fine and are great. Today, we are here to discuss on the topic how to become a Supreme Court lawyer in India and to deliver the expert knowledge and their experience with us. We have with us Advocate Anita Bafna, Madam, who is Advocate on Record, Supreme Court of India, New Delhi. Now, welcome, ma'am, at Legal Savior. Thank you so much. Now, ma'am, if you permit, I would like to briefly introduce yourself and then we will proceed with the Sure, webinar. sure. Now, as such, ma'am is having career of almost 22 plus years in legal profession, and specifically, ma'am is more tilted towards criminal and matrimonial practice. As madam says that her passion to work for criminal trials is not to get conviction or acquittal, but to get the terms settled between the parties amicably, so it can be future development of relations between them. Having said that, ma'am cleared her advocate on record examination in 2015 and she is AOR since 5 years. Ma'am is also delivering lectures of legal importance on national television, which I also have observed. So there are many things to say, but as ma'am would be like very much equipped with her busy schedule, I would not take much time of yours, ma'am, and we would definitely proceed further with the webinar of the day with the topic. So, ma'am, welcome again, and the platform is all yours, ma'am. Thank you all, and I thank everybody to be here with me for today, sharing my journey of advocate on record exam. See, every lawyer as a professional, and those who are in India, they want to see the Supreme Court. Even I had this dream. I won't say from childhood, but of course when I became a lawyer, I was thinking कि Supreme Court कैसे जाते हैं, कुछ जाते हैं, Supreme Court एक दिन देखना. This is what was in my mind, back of the mind. That was my dream. Somewhere when I was working in the magistrate court in Andheri, which is in Mumbai, near airport, I saw one day one lawyer came to the bar room, and another lawyer came to him and like Supreme Court का lawyer अपने यहाँ कौन है? So I was like Supreme Court का कोई अलग lawyer होता है? I was not aware that time there is some advocate on record exam and something like that. तो बोलते क्यों चाहिए? तो बोलते वकालतनामा साइन करना है. I asked my senior, वकालतनामा सिग्नेचर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई बाहर का लॉयर अलग होता है क्या? Then she told me there is no exam. Even she was not aware. She told me, but she told you can find out. I saw that lawyer. Later I got hold of that lawyer और मैंने उनको पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर क्या होता है? Then he told me कि there is an exam which is called advocate on record exam. Now see friends, advocate on record exam ये सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करता है every year. Previously it used to be thrice a year. Now it's once in a year. That is mostly in June because of COVID. Now it is postponed for some reason. So maybe वो January या February में होगी. Mostly it is always held in June. Now what happens? Advocate on record exam क्यों होती है? See, you have to go. I would like all the juniors here to write down some points where I will say कि आप लिख लीजिए. Article 145. If you read Article 145 of the Constitution of India, it permits Supreme Court to make rules about who will practice before it. तो वो जो rules regulation होता है वो Bar Council of India के इसमें आपको जो सनद होती है वो कौन देता है? Bar Council of India देती है और जो respective Bar Council होती है state में, जैसे महाराष्ट्र में वो और महाराष्ट्र के लिए एक ही है. पर लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्जाम देनी पड़ती है. दैट डज नॉट subtract you from practicing before the Supreme. You can still practice before the Supreme Court, but then you can't sign the wakalatnama, can't sign the pleadings of the Supreme Court unless and until you pass an advocate on record exam. This exam was started from 30 years back, more than three decades now. अभी काफी समय हो गए. So what was the reason behind it? What I have understood over the years, कि सुप्रीम कोर्ट में आता है जो पूरे देश से, देखिए देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं, more than 30 हाई कोर्ट्स विद बेंचेस. तो वो सारे वहां पर आते हैं. तो जब वो वहां पर लॉयर्स आते हैं तो दे में गो बैक टू देयर अबॉर्ड बैक परमानेंट जो अबॉर्ड है उनका. तो व्हाट विल हैपन व्हेन द मैटर इज लिस्टेड इफ दे आर नॉट प्रेजेंट? द सुप्रीम कोर्ट वांटेड समबडी कि जो मैटर का रिस्पांसिबिलिटी ले. दैट
किलोमीटर के रहेगा दिल्ली में, तो those advocates will be called advocate on record. अब वो advocate on record is responsible for filing the matter, for removing the objection, for appearing when the matter is called out. जब matter call out होगा, list होगा सुप्रीम कोर्ट में, he has to be there. And along with that, even though you are a 1 day old lawyer, मैंने कहा 1 day old lawyer, अब एक ही दिन का सनद है, you can appear with him and with his permission. तो परमिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनका लिखित में परमिशन चाहिए, बट ही शुड बी अराउंड यू. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैटर्स फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम को बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है. सबसे और एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जब आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट होता है उसमें एडवोकेट रिकॉर्ड का पूरा रोल नंबर्स होता है, उसमें आपका नाम होता है, तो आपका नाम हिस्ट्री में काम होता है, तो यू फील हैप्पी. और एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जिनको डिजिग्नेट करता है सीनियर लॉ एडवोकेट, उनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में हमेशा के लिए रह जाता है. जजमेंट्स में तो नेचुरली अगर इफ यू अपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट तो आपका जजमेंट्स में नाम रहेगा. तो इट डजंट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डज नॉट बार यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. ओनली थिंग कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मतलब है कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर for the matter if you are an advocate on record, and that is the arrangement done by the Supreme Court, because Supreme Court cannot, जब matter list होगा, somebody is Kerala, somebody is Kashmir, कोई झारखंड में है, अगर वो वहां नहीं पहुंचे तो ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कोर्ट है देश का, तो वहीं पर ऐसा ही नहीं कि मैटर पड़ा रहेगा. इट हैज टू डिलीवर जस्टिस, तो इट विल नॉट वेट फॉर यू. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का. और अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को आपने एंगेज किया और आप वहां नहीं पहुंचे तो the duty of advocate on record, unless he is able to show some reason, कोई सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू करने वाले नहीं है, उनको आर्ग्यू करने पड़ेगा मैटर. तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत बड़ा है. वंस ही फाइल्स दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है आपको, प्रिविलेज लॉयर भी बोला है सुप्रीम कोर्ट का. एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरा मैटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है. तो जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट कितना रिकॉग्नाइज करना, कितना इंपॉर्टेंट है. So now we'll come to what is advocate on record exam. कैसे बनते हैं advocate on record, आप कैसे बनोगे? अब देखा होगा कभी अपने नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग लिख लेते हैं, तो कैसे लिखते हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट? एक तो डेजिग्नेट होते हैं, या फिर दूसरा है कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम पास कीजिए. तो और थर्डली ये भी है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते फिर भी आप लिख सकते हैं. वो आप इफ यू आर इन दी एनी स्टेट तो आप उस हाई कोर्ट के बाय डिफॉल्ट आप उस हाई कोर्ट के लॉयर, जरूरी नहीं है कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप उस हाई कोर्ट को एफिलिएट करें. इन सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस रेगुलर, यू कैन स्टिल राइट योर. नाउ कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, हाउ टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर. तो एक छोटा सा चीज है दोस्तों कि एडवोकेट रिकॉर्ड का एग्जाम है. नाउ आई विल आस्क यू टू टेक पेन एंड पेंसिल विद योर पेपर. एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जाम, इसमें 4 पेपर होते हैं. इट इज एज सिंपल एज योर, आपने लॉ एग्जाम पास करी है, इतनी सिंपल है. अगर जो मेरे ख्याल से जो लॉ एग्जाम पास करते हैं LLB 3 साल का या 5 इयर्स प्रोसेस, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर बन सकते हैं. सिंपली आपको एक एग्जाम पास करनी है. वो डिफिकल्ट है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट उसके लिए हार्ड वर्क है. अगर आपने गो थ्रू कर लिया है, सारा पोर्शन है और आप विजिलेंट लॉयर, आपने ध्यान दिया है पढ़ाई में. वेलकम टू फ्यू जजमेंट्स ऑफ व्हिच यू शुड नो इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर टुडे. अगर आपने ध्यान से वकालत की है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर दैट एग्जाम. एडवोकेट एग्जाम के 4 पेपर होते हैं. फर्स्ट पेपर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड पेपर है ड्राफ्टिंग. थर्ड पेपर है प्रोफेशनल एथिक्स. एंड फोर्थ पेपर लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो आई विल गिव यू वन टिप ऑफ टुडे. सुप्रीम कोर्ट के जो फोर्थ पेपर है लीडिंग केसेस ऑफ इंडिया, इज सो इजी कि आप आज से एक जजमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए. दोस विल बी रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन, तो हमेशा के लिए इट विल बी यूजफुल फॉर योर रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस. नाउ दिस ऑल 4 सब्जेक्ट्स कैरी 100 मार्क्स ईच, सो 400 मार्क्स. इसमें आपको पास होने के लिए 60% होना चाहिए एग्रेगेट, और मिनिमम 50 हर इसमें होना चाहिए. हर मतलब हर आपका एग्जाम हर पेपर में. समझो आपने प्रोफेशनल एथिक्स का पीरियड, तो आपको अगर उसमें 50 मिला है तो ड्राफ्टिंग में आपको 70 मिलना चाहिए. कंपेंसेटेड 60 मार्क्स, मतलब 60-60 हो जाना चाहिए. 60 into 4 तो हो गया 240. दिस इज दैट सिंपल. ऐसा नहीं कि आपको 80% 90% मिलना है. हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? 5 अटेम्प्ट्स. अभी नाउ आई हैव सीन ओवर द ईयर एक्सपीरियंस, मैंने काफी
काफी लोगों को हेल्प भी की है पढ़ने में, तो मैंने देखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हम करके देख लेते हैं. हियर आई वांट टू डिफर एंड डिसएग्री विद दोस पीपल कि हम करके देख लेते हैं, एग्जाम में अपियर होके देख लेते हैं. नो, अपियर होके नहीं देखना है, आपको पास होने के लिए एग्जाम देनी है. हैव यू सीन एनी ऑप्शन इन आर्मी? जब पाकिस्तान चाइना के साथ हमारा वॉर होता है तो उसके पास ऑप्शन होता है क्या वो, कि वो ऑप्शन के अभी लड़ेगा, मतलब लड़के देख लेते हैं? नहीं, आपको आई वुड से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है तो बर्निंग डिजायर अंदर चाहिए एंड यू हैव टू हैव दैट इनसाइट कि मुझे एग्जाम पास करनी है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी एग्जाम नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते. ओनली कि उसका पोर्शन है ना, मतलब आप एवरीथिंग अंडर दिस सन बोलते हैं ना, पोर्शन है जो भी लॉ का स्टडीज है, एवरीथिंग अंडर दिस सन. तो लॉयर को तो वैसे भी अच्छा बोलते हैं ना, काउंसलर होना चाहिए, अच्छा साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए. कभी कभी हमारे पास एजेड क्लाइंट्स आते हैं तो हम लोग उसके पेरेंट्स बनने का कोशिश नहीं करते. हम लोग वी डोंट एडवाइज दैट चाचा जी अब क्या है, बच्चे को माफ कर दीजिए, आप झगड़ा मत कीजिए. डोंट वी एडवाइज एज अ लॉयर्स, वी डू एडवाइज है, राइट? कि आप ऐसे तो आपको लॉयर वैसे मदर फादर आपको हर चीज बनना है. कभी हम बेटा बेटी बन के भी क्लाइंट का मैटर सॉल्व करते हैं. आई हैव सीन यंग जो होते हैं ना, यंग जनरेशन है, वो जो इनका जो झगड़ा होता है, मैंने देखा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, तो दे आर नॉट मैरिड समटाइम्स जूनियर लॉयर्स एंड दे आर एक्सप्लेनिंग हस्बैंड एंड वाइफ, डोंट फाइट, प्लीज गो टुगेदर फॉर योर चिल्ड्रंस सेक. आई हैव सीन दिस पर्सनली, so I am very proud of the young generation who has come here to listen to me and those who are practicing. Trust me, this is the profession which can take you anywhere. Look at Harish Salve sir. आज आपको मालूम है कि जो ब्रिटेन में है वहाँ पर क्वीन सिस्टम चलता है, डेमोक्रेसी है फिर भी क्वीन सिस्टम है, तो उनको क्वींस काउंसिल बने हैं. आप सोचिए, मतलब आपको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में तो वहीं प्रैक्टिस करनी है. यू कैन बी एन इंटरनेशनल लॉयर. I'll give one more example of Dalveer Bhandari sir. Dalveer Bhandari, Justice Dalveer Bhandari. वो आज इंटरनेशनल कोर्ट है हमारा, उसमें वो जस्टिस है. He was in Supreme Court when I went to Supreme Court in the year 2012. तो just imagine वो कहाँ पहुँचे हैं. मतलब आपको कोई एंड ही नहीं है इस प्रोफेशन में, कोई रिटायरमेंट नहीं है. Only thing you can continue. और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, because your experience increases, आपका नॉलेज बढ़ता है, टू हैंडल मोर पीपल, यू कैन हैंडल मोर पीपल. तो लॉयर को बोलते हैं ना, अच्छा साइकियाट्रिस्ट, अच्छा स्पीकर और अच्छा मदर फादर, सब कुछ बनना है आपको. रिलेटिव भी बनना है वक्त पढ़ने पर, सब कुछ बनना है. एंड एट द मोस्ट द बेसिक क्वालिटी आई वुड ऑलवेज से, बी ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड हार्ट. अगर आप अच्छे इंसान हो तो अच्छे लॉयर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे IAS ऑफिसर, अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे हस्बैंड, अच्छी वाइफ, सब बन सकते. बेसिक क्वालिटी मतलब जो बेसिक कैरेक्टर है वो यही है कि यू शुड बी वेरी गुड एट हार्ट. अगर आपका हार्ट क्लीन है तो बहुत अच्छा है. आई हैव रेड रिसेंटली, मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे. नॉर्मली व्हाट डू वी स्पीक जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि उसमें एक लाइन लिख रहा है कि द क्लाइंट हैज कम, जो भी पिटिशनर हैज कम टू दिस कोर्ट बिफोर क्लीन हैंड्स, और यू शुड कम टू द कोर्ट बिफोर क्लीन हैंड्स. मैंने एक जजमेंट पढ़ा था, महाराष्ट्र का था, उसमें लिखा था नॉट ओनली क्लीन हैंड्स विद क्लीन माइंड, क्लीन हार्ट एंड क्लीन इंटेंशन. देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जब आप ये अवेयरमेंट करोगे, द पिटिशनर कम बिफोर दिस कोर्ट विद क्लीन हैंड. तो इफ यू रीड जजमेंट्स, आई एम कमिंग टू द पेपर्स ओनली, जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस एग्जाम में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने वो अवेयरमेंट में लिख दिया इफ पिटिशनर हैज कम has approached this honorable court with clean, not only with clean hands, but clean heart, clean intention and clean mind. तो आपका जो ड्राफ्टिंग का लेवल है ना, the judge who will going to read your drafting will definitely appreciate. Whenever you see, जब कोर्ट में कोई सीनियर लॉयर अपीयर होते हैं, उनका लैंग्वेज में वो इतनी सुंदर लैंग्वेज में बात करते हैं कि मतलब कभी कभी अपने को लगता है कि अरे हमको ये लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है. तो उन्होंने कैसे वो लैंग्वेज सीखी? तो लेट मी टेल यू, उन्होंने वो लैंग्वेज कैसे सीखी है? उन्होंने वो लैंग्वेज जजमेंट पढ़ कर सीखी है. तो दिस इज वेयर जो फोर्थ पेपर लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला, तो हम लोग कुछ जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर. तो मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी कि आप जजमेंट्स रीड कीजिए. आई ऑलवेज टेल माय जूनियर्स, वी ट्राई टू रीड वन जजमेंट ईच डे. इट इज वेरी बहुत पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल है. हम पूरा दिन सोशल मीडिया पे, अगर आप सर्वे देखने जाएंगे सोशल मीडिया पे ऐसे होता है कि मतलब हम लोग कम से कम 2-3
दिन 8 घंटा भी कभी कभी सोशल मीडिया पे, आदमी 17 घंटा जगता है तो कम से कम 7 घंटे सोशल मीडिया पे होते हैं। तो क्या हम 2 घंटे में एक जजमेंट नहीं पढ़ सकते? 1 judgment a day, that is 30 judgments in a month and 365 judgments in a year. So if you read 365 judgments in a year, just imagine आपका जो vocabulary है इंग्लिश का और लीगल लैंग्वेज में, it will improve. One, number two, your English will improve. English, though you may be speaking very good English, but legal language की English थोड़ी सी अलग है। कोर्ट में हम लोग जब भी oblige sir बोलते हैं, हम थैंक यू नहीं बोलते जजेस को, oblige sir, grateful sir। तो लॉ के बारे में ये बोला गया है, इट इज अ प्रोफेशन जिसमें हारने के बाद भी, नोबल प्रोफेशन है oblige sir, हारने के बाद भी हम झुकते हैं। क्यों? वो क्वालिटी है, हम लोग उधर झगड़ा नहीं करते हैं। आई नो, रिमेम्बर वन एग्जाम्पल, मतलब मैं एडवोकेट एग्जाम के लिए अपियर नहीं होने वाली थी, मैं जस्ट दिल्ली गई थी, तो वहाँ कोई एडवोकेट एग्जाम के ये लेक्चर्स कंडक्ट होते, तो हरीश साल्वे सर थे, वो बोलते थे कोर्ट में आते तो चिल्लाना नहीं है, आपको फर्मली बात करना है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाकर क्लाइंट बोलेगा अरे ये वकील तो चिल्ला रहा, दिस वाज इट लाइक दैट, डोंट शाउट, फर्मली बात करना है। सी आपका जो बोलते हैं ना, जो चिल्लर होती है कॉइन्स, उसका आवाज बहुत वेट होता है, नोट का आवाज होता है, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है? नोट की ज्यादा, पेपर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू बिकम अ लॉयर। तो बोलते हैं लॉयर को मतलब ऐसी कौन सी चीज नहीं है, वो सब आईएएस के लिए बोला जाता है कि जब भी आप आईएएस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, एवरीडे अंडर दिस सन इज योर, क्या बोलेंगे, आपका पूरा मतलब करियर का जो भी निचोड़ है पूरा आपको वहां पर पढ़ना है। सेम थिंग आई वुड से कि यहाँ पर भी आपको जो पोर्शन है एवरीडे अंडर द सन भी हो सकता है, दिस इज वन थिंग। ये एक दूसरी चीज है। अब उसमें एक और चीज मैं बोलूंगी कि ये एग्जाम कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? एवरी लॉयर हु हैज गॉट अ सन एंड 4 years practice in any court in India, any court in India, it is not required कि आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस चाहिए। देयर आफ्टर 4 years प्रैक्टिस सनद लेने के बाद, और एक्टिव प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको जो एक्टिव का जो सर्टिफिकेट है, देयर आर मेनी सर्टिफिकेट्स, मतलब कुछ उनकी फॉर्मेलिटी होती है, जब भी आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो दे आस्क सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर बार काउंसिल लोकल, तो वो आपको एक चीज ये मांगेंगे कि उसमें आपके पास ये भी मांगेगी कि आपका एक्टिव, आपका जो प्रैक्टिस है वो एक्टिव होना चाहिए। तो 4 years का प्रैक्टिस हो गया एंड 1 year सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस। और सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई ऐसा लॉयर मिलता है जिसको 10 years का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो ही विल गिव यू 2 certificates once you start working with him or she, commencement certificate and completion certificate। अगर ये 2 सर्टिफिकेट आपने ले लिया और एग्जाम की आपने बाकी की पूर्तता कर दी, तो you will be able to appear in exam। Now there are 5 attempts, और उसका बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है वो नेट पे भी है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे भी है, उनके नोटिफिकेशन नाउ हुए हैं 2020 2019 का भी आप नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एक्सेप्ट सम फ्यू चेंजेस इन द 4th पेपर लीडिंग केसेस में, बाकी पोर्शन ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम आपको 5 years टोटल प्रैक्टिस लगेगा व्हेन यू आर अपियरिंग, 5 attempts है, बट डोंट गो फॉर ऑप्शन 1 2 3 4 5, गो फॉर अब मुझे पास ही करना है। टाइम पास के लिए लॉ नहीं है, लॉ इज नॉट टाइम पास, लॉ इज नॉट समथिंग वी टू मेक अप एंड गो टू द कोर्ट, नो। एज अ लॉयर यू आर हैंडलिंग not the files of the people or your client, as a lawyer you are handling the life of the client। मैंने कहा ना कि अगर आप कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैंडल कर रहे हो तो आपको फादर मदर भी बनना है। कभी कभी अपने, आप मैरिड नहीं हो, जूनियर लॉयर हो, फिर भी आपको तो सामने वाले जो क्लाइंट आपसे उम्र में बड़े आपको समझाना है, तो यू अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम है वो भी इसी तरह का है। इट इज नॉट टू फाइंड आउट कि आपका मेमोरी पावर कितना है, कौन से साल में कौन सा केस हुआ, वो नहीं। इफ दोस हु हैव अपीयर्ड फॉर द आईपीसी एग्जाम्स हुआ है, तो आपके जो प्रोफेसर हो गए, हमारे प्रोफेसर तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, डोंट राइट इफ यू डोंट नो द सेक्शन प्रॉपर्ली, डोंट राइट द ईयर इफ यू डोंट नो द केस लॉज प्रॉपर्ली, बट राइट द केस लॉ। जैसे विनीत नारायण का केस है, आपको पूरा केस लिखने की जरूरत नहीं है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अलाउ किया था, हवाला केस, इफ यू दोस हु आर सीनियर हियर रिमेंबर, तो उसमें इतना सिंपली बताया गया था कि आप मतलब आप सिंपली उसका नाम इन विनीत नारायण केस, दिस वाज हेल्प विशाखा गाइडलाइंस में क्या हेल्प किया था। डोंट राइट द ईयर, इट्स ओके। आपका मेमोरी नहीं टेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो टेस्ट कर रहा है कि आपका रीजनिंग क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, आपको मालूमात कितनी है, आपको
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ग्राउंड्स क्या होते हैं, वो बेल एप्लीकेशन हो, स्पेशल वो जानना चाहता है। आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल है, तो ड्राफ्टिंग में ये नहीं है कि आपको पूरा ऐसे लिखना है, नो नो, डोंट राइट लॉन्ग आंसर्स, दे डोंट एक्सपेक्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो आपने जो इतना बोलते हैं ना 4-5 साल प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर पाओगे। आपका सीरियसनेस कितना है लॉ के प्रति, दिस इज व्हाट दे वांट टू चेक, दिस इज नॉट टू टेस्ट योर मेमोरी कि उन्होंने 40 जजमेंट है, 45 जजमेंट है, वो अपने बाय हार्ट कर लिए, नो, इट इज नॉट फॉर दैट। So this exam is simply to find out how serious you are as a lawyer, आप कितना सीरियस हो एज अ लॉयर, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो बोलते हैं ना ग्रेस, उतना ग्रेस रखोगे आप बाहर कि मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, अब वो ग्रेसफुलनेस होना चाहिए। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ग्रेसफुलनेस। कभी कभी हम लोग लॉयर की हमारी आपस में कोर्ट में झड़प हो जाती है, दो लॉयर्स आपस में बात करते हैं, हो सकता है अप एंड डाउन भी हो जाता है बातचीत, सो व्हेन वी कम आउट हम लोग ऐसे मुंह करके नहीं चले जाते हैं, ओके बाय फ्रेंड ऐसे करके हाथ मिला के जाते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स में कम एंड गो। मैं और सागर, प्रतीक या जो भी यहाँ पर लॉयर्स है, मेरी फ्रेंड है वंदना है, मेरी फ्रेंड नयन है पारिक, वो भी गुजरात से है हाईकोर्ट से, तो क्या हम लोग ऐसे मुंह मोड़ के चले जाएंगे? लॉयर्स में कम एंड गो, मेरा जो दोस्ती है वो इनके साथ हमेशा रहेगा। यू डोंट बिकम माउथ पीस ऑफ योर क्लाइंट्स, आप बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए, अपने देखिए उसको लॉ जो जिम्मेदारी होती है, जो जजमेंट देने की जिम्मेदारी होती है वो कोर्ट की है, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप अपने क्लाइंट का जो पक्ष है, जो उसका पॉइंट्स है वो क्लैरिटी लेगा। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसने कौन से परिस्थिति में किया है, सी देयर इज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जो अगर आप पढ़ोगे एविडेंस एक्ट में और आईपीसी में बहुत सारी चीजें हैं कि आपको किसी ने आके बोला मैंने फोन कर दिया था, ऐसा नहीं कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, बट हियर आई विल वांट टू करेक्ट यू कि अगर somebody is telling कि I am going to kill somebody, then it is an information you have to inform police. But somebody who has already crime commit कर लिया है, तो वो तो आपके पास डिफेंस के लिए आया है, तब आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप उसको डिफेंड करें, नहीं तो उसको नमस्ते बोल के बोले कि I am not ready to take away your case, तो my conscience does not allow। जैसे मुझे अगर बच्चे का किडनैपिंग का केस है तो मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउड नहीं करता कि बच्चे का किडनैपिंग का केस मैं लूं, मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ कर सकता, दैट इज ओके, दैट इज माय पर्सनल थिंग, वो पर्सनल थिंग, दैट डज नॉट मीन मैं किसी और को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, नो नो, वो उसका मेरा और उसका प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, आई एम नॉट अलाउड टू डाइवर्ज दैट टू एनीबॉडी, इवन टू माय फैमिली मेंबर्स, वो उसका राइट्स है, वो उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने क्रिमिनल प्रैक्टिस की है कुछ लोगों ने, तो आपको पता होना चाहिए कि टू रिमेन साइलेंट इज एक्यूज राइट, कीप साइलेंट, law cannot force an accused to answer, of course they can draw the adverse inference। देखिए लॉ तो बहुत डीप है, ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, मतलब किस कैसे बैठेगा वो आपको बिठाना है, दैट इज एन आर्ट ऑफ द लॉयर, आपको कौन सी बात कैसे करनी है, वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पढ़ते जाओगे लॉ में तो कुछ भी कमी नहीं है। रोज का मैं कहूँगी रोज एक जजमेंट पढ़ सकते हो, अगर रोज का एक जजमेंट नहीं पढ़ सकते हफ्ते का एक जजमेंट पढ़ लो, महीने के 4 जजमेंट हो गए, तो भी 48 जजमेंट 50 जजमेंट मतलब साल के हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एग्जाम। और ये एग्जाम इजी है क्या डिफिकल्ट है? लेट मी टेल यू विद ऑल माय हार्ट टू ऑल द एस्पायरेंट हु इज गोइंग टू अपीयर इन फ्यूचर, इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट रीडिंग, कुछ भी मगअप नहीं करना है आपको, कांस्टेंट रीडिंग एंड सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड द एक्सपोजर टू द लॉ फील्ड। आपका जितना एक्सपोजर रहेगा, आई विल नॉट से कि आपका पैसा कमाना बुरा चीज है या पैसा एक्सपर्ट का जूनियरशिप में गलत है, बट आई वुड से कि फर्स्ट 2 इयर्स जो आपको है वो आपको सिर्फ काम पे ध्यान देना है, सिर्फ काम आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको ट्रस्ट मी दिस प्रोफेशन विल गिव यू लॉट ऑफ मनी, और जितनी आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कॉफी में दिल्ली में कि एक में मेरी फ्रेंड ने कहा 2 महीने से कुछ काम नहीं आया, तो सिंपली मैंने उसको बोला कि लॉयर का प्रोफेशन तो ऐसा है कि आज 2 महीने काम नहीं आया, अगले महीने जो काम आएगा वो पिछले 2 महीने जो काम नहीं है ना उससे 4 गुना आ जाएगा। यू शुड बी एबल टू हैंडल मोर वर्क, इफ यू आर एबल टू हैंडल मोर वर्क तो आप तैयार रहिए, कैसे ज्यादा हैंडल करेंगे, तो आपको नॉलेज होगी तो सब
मिटा नहीं है कोरोना, तो यू हैव, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं पूरे देश में, तो कम से कम आपके पास समय है, तो ये 30 मिनट्स तो कुछ भी पढ़ने के लिए, लीगल कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है, घर में कोई बुक पड़ी हो गई लॉ की, आपके ऑफिस में नहीं है, आपके पास ऑफिस में भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, go to somebody's house, go to somebody's senior's office and ask him to give, and if you go to 5 senior lawyers, one will definitely give, लेकिन वो इच्छा यहाँ से होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लॉयर बनना है, दिस इज वन थिंग। तो इफ यू रीड, आपका जो रीडिंग है वो यू शुड बी विविड रीडर, नॉट ओनली अबाउट दी जीके नहीं पढ़ना है, आपको लीगल पढ़ना है, कुछ नहीं है लीगल, रोज का है ना न्यूज़पेपर को उठा लेते हैं, उसमें भी लीगल न्यूज़ बहुत होती है, दैट आल्सो यू continuously read, आपको आपका लीगल लैंग्वेज इंप्रूव होगा, एंड वंस योर लीगल लैंग्वेज इंप्रूव यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि जो मैंने कहा ना क्वेश्चन पेपर है वो आपका रीजनिंग चेक करता है, आपका मेमोरी चेक नहीं करता है कि आप कैसे, आपका लीगल लैंग्वेज कितना अच्छा है, इट इज ऑल अबाउट लीगल लैंग्वेज, इट इज नॉट इवन चेकिंग इंग्लिश, ऑफकोर्स योर इंग्लिश शुड बी गुड व्हेन यू आर अपेयरिंग टू पुलिस पेपर, यू कैन नॉट हैव स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दैट इज वन थिंग, सी लर्निंग लैंग्वेज इज 3 month job, एनी लैंग्वेज, आपको साउथ की भी कोई लैंग्वेज दे दीजिए, जो अगर हम गुजरात में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो साउथ की लैंग्वेज टोटली अलग है, लेकिन अगर आपको 3 महीने दे दिए जाए किसी भी लैंग्वेज सीखने को, तो आप सीख सकते हो। तो इंग्लिश को हमने स्कूल टाइम से सीखी है, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल लैंग्वेज, ओनली यू नीड टू इम्प्रूव, और वो तो लैंग्वेज तो ऐसे कि जितनी, अगर मैं हिंदी बात कर रही हूँ तो हिंदी भी ऐसे नहीं कि एक दिन में आ गई है, वी आर लर्निंग एवरी डे, वी आर लर्निंग न्यू वर्ड्स। This brings to reminds me of one Justice T.S. Thakur, and I am talking about Chief Justice T.S. Thakur, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, and if you can follow that, why can't you people? और me in fact, वो बोलते थे when I was young, उनका स्पीच था सुप्रीम कोर्ट में when I was there, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं ओपनली, वो भी चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बोल रहे हैं कि when we were children, we were asked not to keep the अपना जो newspaper down till you learn 2 new words। देखिए वो इतने बड़े लेवल पे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको समझा रहे हैं कि आपको जब तक 2 वर्ड्स नया रोज नहीं सीखते हैं तब तक आपको न्यूज़पेपर नीचे नहीं रखना है। अगर वो समझा रहे हैं, इफ यू कैन टेक वन व्यू फ्रॉम दिस वन थिंग, तो अगर हमने रोज एक जजमेंट हमने एक हफ्ते में भी पढ़ लिया तो कितनी बड़ी चीज है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन टीचिंग टू मी। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे चीजों को मैं निचोड़ूं। तो और अगर मैं बोलूं कि आदमी को कौन बढ़ाता है या क्रिएट करता है, तो आपके आसपास के 5 लोग होते हैं ना, वो आपको क्रिएट करते हैं। सागर जो भी है आज, या प्रतीक जो भी है मेरे सामने, या वंदना जो भी है, तो इसके 5 लोग आसपास के लोग हैं ना, वो उसको क्रिएट करते हैं। मैं जो भी हूँ ना, तो जो मेरे आसपास 5 लोग हैं ना, उनका निचोड़ूं। The man is known by the company he keeps. So if you are in the company of good lawyers, definitely you are going to learn and improve. If you are in the company of company का मतलब ये नहीं कि किसी के घर में जाकर बैठना है। कंपनी का मतलब है कि वो आपको ध्यान रखना है। Now I will see there are, मैं एक छोटा सा लेक्चर ले रही हूँ, then I see 24 people attend। Same thing मैं बोलती हूँ, ऐसे बहुत सारे लेक्चर होते हैं, बहुत सीनियर लॉयर्स के लेक्चर होते हैं। अगर आपके पास नेट का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, अगर हम व्हाट्सएप को 2 घंटे दे सकते हैं दिन में, या 1 घंटा दे सकते हैं, तो उसमें से आधा घंटा माइनस करके हम अगर किसी सीनियर लॉयर का लेक्चर सुन लेंगे तो हमें कितना नॉलेज हो जाएगा। तो आप डिवाइड तो कीजिए, आप जितना डिवाइड करोगे तो वो भी कंपनी होगी ना। एंड आई एम लिसनिंग, अगर जैसे हमारे में बोला जाता है कि मंदिर में जाना चाहिए, क्यों? वहाँ अच्छे से वाइब्रेशन आते हैं, वहाँ भजन कीर्तन होता है, तो उनको अच्छी बातें सुन। कभी सुना है मंदिर में जाके इंसान को ऐसे इसकी जेब काट लो, इसका खून कर लो, या इसके बच्चे को किडनैप कर लो? क्यों ऐसे विचार नहीं आते? वहाँ के वाइब्रेशन अच्छे होते हैं। तो जब आप लॉयर के संगत में रहोगे तो आप क्या करोगे? आप जब लॉयर्स की संगत में रहोगे, अच्छे लॉयर्स के, तो क्या होगा? अच्छी बातें सीखोगे। मैंने भी वही किया है और मुझे और इम्प्रूव करना है। आई एम नॉट सेइंग आई एम समबडी टुडे, ओनली थिंग आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम एंड आई एम वेरी हम्बल। मैं सागर और आप जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, कि मैं ये थोड़ा सीख लिया है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ज्ञान है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, बांटूं। शायद इससे मुझे भी बोलते ना प्रोत्साहन मिलेगा कि आई इम्प्रूव माई सेल्फ, कि मुझे भी जाके कहीं पर स्पीच देनी है। मे बी आई विल बी इनवाइटेड एट सम और बेटर, और इससे बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ मुझे 100 लोगों से बात करनी है। देन आई शुड बी मोर प्रोफिशिएंट इन माई
स्पीकिंग, अंडरस्टूड? तो आपको जितना कोशिश करोगे तो आप जो भी हो आपके 5 लोग हैं ना आपके आसपास, उनका आप नीचो। तो ऑलवेज रिमेम्बर यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो कंपनी का मतलब ये नहीं कि मम्मी डैडी पढ़े लिखे नहीं तो उनको छोड़ना है, या भाई बहन पढ़े लिखे नहीं। इट्स नॉट दैट, हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि वो लोग भी तो आपसे ही जाने जाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि माधुरी दीक्षित को हमेशा मधुबाला कहा जाता था कि तुम मधुबाला की कॉपी। तो उसको जब बोला गया कि अब आप जब वो बड़े स्टार्टअप में चली गई तो उसको पूछा गया कि कैसे लगता है, कि पहले मुझे बोला जाता था तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता था, लेकिन अब वो लड़की माधुरी दीक्षित जैसी दिखती है। आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो बोलते अब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ मकाम प्राप्त कर लिया। तो सेम थिंग अप्लाइज टू अस ऑल्सो, कि मुझे कोई बोलेगा कि मैडम आपको देख के मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कोर्ट की एग्जाम दी, दैट इज माई जॉब। आपको प्रोत्साहन करने का जिम्मेदारी अब मेरा है कि मैं अपने आप को कैसे होल्ड करूंगी सोसाइटी में, मैं कैसे अपेयर होंगी, हाउ आई विल अपेयर, दिस इज वन थिंग। तो एग्जाम्पल्स टू लर्न बहुत कुछ आपके आसपास बहुत है। तो सीखना तो माधुरी दीक्षित से भी है, सीखना अमिताभ बच्चन से भी है, टाइम पे पहुंचना। वन जूनियर वॉकड इन माय ऑफिस एंड शी टोल्ड मी कि मुझे आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग विद यू। तो मैंने बोला ठीक है। देन शी टोल्ड मी ड्यूरिंग द, मैं बात कर रही थी कन्वर्सेशन, उसने बोला मुझे आपकी जैसा लॉयर बनना है। मैं बोली मेरे जैसा नहीं, मेरे से आगे बढ़ना है। मैं तो एक छोटा सा माइलस्टोन हूँ बीच में, माइलस्टोन कहना भी बहुत बड़ी बात होगी, एक छोटी सी लॉयर हूँ, मुझसे भी आपको आगे जाना है। तो बोली क्या करना चाहिए? बहुत हार्डवर्क करना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। आई गेव हर वन थिंग कि मैं तुमको सब सिखा सकती हूँ, विल यू टीच मी? बोला आई कैन टीच यू एवरीथिंग, आई कैन टीच यू ओनली वन थिंग, टू कम ऑन टाइम। एक सिंपल थिंग है। व्हेन आई वाज इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट प्रैक्टिसिंग, वन सीनियर लॉयर वाज देयर, तो मैं जल्दी चली जाती थी। तो बोलते थे मैं अपनी जूनियर को तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ कि लड़की टाइम पे आती है। तो दिस इज वन थिंग, अगर वो आप इतना छोटा सा चीज, तो लॉयर इतना बोले कि जूनियर शुड रीच द कोर्ट 1 hour बिफोर द कोर्ट स्टार्ट। ऐसा आपको कोई काम नहीं होता है सुबह कि हम 1 घंटा जल्दी नहीं पहुंच सकते। आई सी पीपल रनिंग 10:45 को कोर्ट में पहुंच रहे, क्या आप सेटल होंगे? 11:10 को कोर्ट में पहुंच रहे। सपोज योर कोर्ट स्टार्ट इन, मैं बम्बई की बात कर रही हूँ, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो 11 बजे चालू होती है। अगर 11 और 11:10 तक मेरा सीरियल नंबर 2 है एंड इट इज कॉल्ड आउट, व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्लाई द क्लाइंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल द जज? आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब द होल कोर्ट, आई एम माई सेल्फ इज डिस्टर्ब। क्लाइंट का केस खराब होगा, क्लाइंट का एग्जामिशन डालना होगा तो उसको वारंट निकलेगा। व्हाट इज द यूज? क्या फायदा है इन चीजों का? तो एक छोटी सी चीज हम मैनेज कर सकते हैं टू रीच कोर्ट ऑन टाइम। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड लॉयर, टू रीच ऑन टाइम। इफ अगर हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे तो क्या परेशानी होगी, शायद हम लोग और लोगों को हेल्प कर पाएंगे। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आजू बाजू में जो लॉयर ऐसे होते हैं सीनियर लॉयर, दे टॉक टू ईच अदर एंड व्हेन दे टॉक टू ईच अदर यू नो व्हाट हैपेंस, आई गॉट टू हर्ड, अभी भी सुनती हूँ मैं, आई गॉट टू हियर सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। उनका लीगल एंड सुनने को मिलता है, तो लॉयर्स क्या बात कर रहे हैं। देन देयर मे बी 5 लॉयर्स अपीयरिंग बिफोर मी, इफ माय सीरियल नंबर इज 6, तो 5 लॉयर, अगर 5 लॉयर्स नहीं 5 मैटर्स मेरे पे आएंगे, तो 5 लॉयर्स अगर तो 10 हो जाएंगे, बिकॉज एवरी मैटर मिनिमम 2 लॉयर्स अपीयर होते ही है नॉर्मली। बाय चांस कोई एब्सेंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी रिस्पोंडेंट 5 है तो 5 लॉयर भी अपीयर हो सकते हैं एक मैटर में, 5 और पिटिशन का एक चाहिए। तो सी 7-6 लॉयर्स आर अपीयरिंग, तो आपको उनकी बातें सुनने को मिलता है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि टू लर्न। तो लर्न करने के लिए किसी घर में जाना जरूरी नहीं है, किसी को छोड़ना जरूरी नहीं है। यू मे बी हैविंग सीनियर जिसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम है, कंप्लीटली ओके, but then also be around whenever you have time. I had one example of a lawyer who was got married and shifted to somewhere, कोई और प्लेस पे चले गए। तो 2-3 साल के बाद मेरी बात हुई, तो बोलती मुझे लीगल फील्ड चालू करना है। मैंने बोला ठीक है, बोलते लेकिन बच्चा छोटा है, आई कांट ट्रैवल। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। बोले कितना छोटा है? तो बच्चा बोलते 6 years का। तो 6 years का बच्चा स्कूल जाता है, तो आपको कोई पार्ट टाइम लॉयर मोस्टली नहीं रखते हैं, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज लॉ ये फुल टाइम प्रोफेशन है, तो पार्ट टाइम आपको नहीं रखेगा। बट व्हाट प्रिवेंट्स यू, जस्ट वन डे गो एंड सिट इन द कोर्ट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकल कोर्ट, बिकॉज शी हैज शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई आपको मतलब एक्सक्यूज नहीं चाहिए टू लर्न। यू शुड नॉट हैव एन एक्सक्यूज। आपको, आप लैपटॉप खोलो, आप मोबाइल खोलो, आप कुछ भी खोलो, फेसबुक खोलो, आपको अगर इफ यू आर अट्रैक्टेड टू लॉ फील्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ प्लेटर। इन माय टाइम आई वोंट like to say, because I am also part of this time,
मेरे समय में हमको सिर्फ बुक्स का अवेलेबिलिटी था, देयर वाज नो इंटरनेट। टुडे गूगल से हम लोग बहुत कुछ चॉइस है हमारे पास कि हम कर सकते हैं। नाउ बैक टू आवर सब्जेक्ट, हाउ टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। इफ यू आपने ये एग्जाम पास कर ली तो यू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। इज इट नेसेसरी यू शिफ्ट टू दिल्ली? आई वुड से जब एग्जाम होती है तब दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यू शुड बी इन दैट एरिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू अटेंड द कोर्ट फिजिकली, आपको फील भी नहीं आएगा, आपको नॉलेज भी नहीं आएगी। तो इफ यू हैव टू पास, तो आई वुड से सी आई वेंट टू दिल्ली आफ्टर 12 years ऑफ माय प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं चली गई दिल्ली एंड आई केम बैक। मैं 2.5 years वहाँ रही। मेरा जर्नी, वंदना मैडम यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो बताएगी कि मैं मंडे टू फ्राइडे वहाँ रहती थी, फ्राइडे रात की फ्लाइट पकड़ के फिर बॉम्बे आती थी, फिर मंडे सुबह 3 बजे उठ के 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के फिर दिल्ली 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो इच्छा थी मेरे लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे अंधेरी से जाना है, इट टेक्स ओनली 5.5 hours विथ फ्लाइट ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने इतना अरेंजमेंट कर लिया क्योंकि मेरे मन में कहीं इच्छा थी कि आई हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो आपको इच्छा रहेगी तो हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जरूरी नहीं है कि you have to go to Supreme Court. If you pass this exam and come back to your High Court or the local court, I will tell you your qualification of the advocate on record does not. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि advocate on record एग्जाम पास करके करेंगे क्या, क्या फायदा है? See, it made me a better lawyer today. Today, मैं बोलूँ कि मुझे बुलाया था इस मंच पे बात करने, it is only because I cleared an exam and I am able to speak little bit with confidence, with legal language. या मैं लोकल भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा जो नॉलेज है जो वहां से पढ़ कर आई हूँ, the way I appear in the Supreme Court and the way I appeared in the High Court back here or even the Magistrate Court, the difference can be made out between two lawyers. See, जब भी दो lawyers appear होते हैं तो आपका वो difference है वो आपको of course दिखेगा when you appear. मैंने कहा ना हरीश साल्वे सर का एग्जाम्पल कि कोर्ट में शाउट नहीं करना है, कोर्ट में अपनी बात कन्विक्शन से कहनी। शाउटिंग इज नॉट वन थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्विंसिंगली आपको अपनी बात कहनी है एंड विद पॉइंट्स कहना है। आई रिमेंबर वन एग्जांपल ऑफ दलवीर भंडारी सर जो भी अपना इंटरनेशनल कोर्ट में है, जज है। ही वाज टेलिंग वन जूनियर कि कुछ वो जूनियर ऐसे ही घाई में आ गया था कोर्ट के सामने, ही वाज अपीयरिंग। तो उन्होंने उसको पूछा कि यस व्हाट्स द मैटर? नो नो, दिस इज माय सीनियर्स मैटर। बोले आई अंडरस्टैंड इट इज सीनियर्स मैटर बट टेल मी व्हाट इज द बेसिक ऑफ द मैटर। बोले आई हैव नॉट रेड। उन्होंने ऊपर से इतना रखा, यू आर नॉट रेड द मैटर। आप जब आपके हाथ में वो, उन्होंने पूछा कि 1 घंटे से तुम कोर्ट में बैठे हो, यू डिड नॉट इवन फाइंड टू ओपन द टाइम टू ओपन द बुक। आपके पास पेपर बुक है या फाइल है, प्लीज ओपन एंड रीड इट। आपके सीनियर का भी, अगर दे आर नॉट अलाउइंग देन फाइन, बट इफ दे आर अलाउइंग प्लीज रीड इट। दिस इज वन थिंग। इसके बाद दूसरी चीज है, उन्होंने बोला कि जब कोर्ट में आते तो उनके ना जो उनका ब्लेजर था उसके बटन खुले हुए थे, तो वो बोले कि दिस इज द वे यू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो जो आपका अटायर है इट आल्सो स्पीक्स। व्हेन आई वाज इन द लॉ कॉलेज इन बॉम्बे, तो एक हमारे सोनालकर सर थे, तो पब्लिक स्पीकिंग का क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि व्हाट स्पीक्स बिफोर यू स्पीक्स? योर क्लोथ्स, आपका बैग। और क्लोथ्स का मतलब ये नहीं कि आपके इंपोर्टेड क्लोथ्स चाहिए या बहुत ओनली इट इज एक्सपेक्टेड कि बेसिक क्लीनलीनेस चाहिए आपके क्लोथ। कई बार आप बैंड पहन के, मैंने देखा जूनियर लॉयर्स होते हैं, सीनियर भी होते हैं, आपका बैंड में दाग लगा हुआ है, इट कॉस्ट 20 रुपीज 30 रुपीज। दाग लगा हुआ बैंड लेके आप कैसे अपीयर होते हैं? आपका इंप्रेशन क्या होगा? जब आप जिस बैंड से आप अपीयर हो रहे हैं, जो आपको एक टाई लगा रखी है, वो इतनी गंदी है, डर्टी, आई एम सॉरी टू स्पीक दिस वर्ड्स, अगर वो डर्टी है, उस पे खाने के दाग लगे, इट इज योर, मतलब बोलते हैं ना, वो रोज का कस्टम है कि आपका गंदा बैंड लेके आप कोर्ट के सामने रहे। अगर आप नया नहीं खरीदे, आप उसको धो लीजिए। क्लीनलीनेस इज वन थिंग, आप उसको सिखा दीजिए। कई बार इसे लटका हुआ रहता है, नो दिस इज नॉट अ पेन, वो हमारा लाइसेंस है। तो आपका क्लाइंट के सामने आपका लेवल क्या होगा, आपके लॉयर फ्रेंड सामने आपका लेवल क्या होगा, और आपके जजेस क्या। एंड सेम थिंग यू वेयर दी एकदम वाइट अच्छे से बैंड लगा के जाए कोर्ट के सामने, बहुत रिस्पेक्ट होगा। कई बार मैंने देखा चेक्स का शर्ट पहन के हम लोग खड़े हो जाते हैं कोर्ट के सामने, ऊपर से काला कोट डाल लेते हैं। तो इफ आई वुड लाइक टू स्पीक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज हियर, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो प्लीज जो बार काउंसिल का रूल्स है उसको पढ़िए कि कोर्ट में हमें क्या पहनना है। इफ यू कॉल मी बिजनेस एथिक्स, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग नोबल प्रोफेशन में है। तो अगर वो बोलता है कि आपको, मैंने पढ़ा है कि एक्सपोजर नो, आपको बाल भी बांध के जाना है। आई डोंट
नाउ हियर कम्स बैक टू द जजमेंट। तो हमारा कंटेंट कैसे अच्छा होगा? क्लाइंट का कहानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल मैटर है, सिविल डिस्प्यूट है, सूट है, वो तो सेम ही है। कहानी तो दो भाइयों की वापस से बस वही कोई कहानी है। तो आप करोगे क्या? अब उसमें करो, कैसे करोगे? मतलब क्या अलग लाओगे उसमें? आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। यू गेट जजमेंट्स बेस्ड ऑन दैट, आपका जो फैक्ट्स है। I will ask you, one of my friend Vandana who is also present here, she taught me। मैंने उसको एक बार पूछा था कि पहले मतलब ड्राफ्टिंग का पहला रूल क्या है? She taught me, she was from Delhi। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहला रूल ये है कि पहले आप जजमेंट ढूंढो फिर ड्राफ्टिंग करो। हम लोग क्या करते हैं? पहले ड्राफ्टिंग करते हैं फिर उसके रिलेटेड जजमेंट। See, I will tell you the difference between first finding out the judgment and then drafting। Suppose we will take a divorce petition। If you want to, आपको एक डिवोर्स पिटीशन ड्राफ्ट करनी है और आपको आ गया कि उसमें इम्पोर्टेंट था, वन ऑफ द स्पाउस इज इम्पोर्टेंट, तो अभी आप क्या करोगे? तो आप तो पहले उनकी कहानी लिख दोगे। डोंट डू दैट प्लीज। यू फाइंड आउट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि मैं कैसे करती हूँ। अपना मैं सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। सीक्रेट नहीं, इनफैक्ट आई विल, मेरा खुद का पक्का हो जाएगा जब मैं आपके साथ शेयर। सिंपली आप, अगर आप इम्पोर्टेंसी आपको ग्राउंड लेना है डिवोर्स में या क्रूअल्टी ग्राउंड लेना है, गो टू द indianlaw.com या कोई भी जो कानून का कोई भी है, जरूरी नहीं आप खरीदे। आपके पास बहुत सारे, मतलब गूगल में चले जाओगे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो फ्री एक्सेस दे रहे हैं आपको। उसमें वन इज indianqanun.com। आप उसमें इम्पोर्टेंस से लिख लीजिए, नए नए कीवर्ड्स डालिए उसमें, आपकी जो कहानी है फैक्ट्स है क्लाइंट्स की, वो डालिए। यू विल फाइंड आउट उसमें जजमेंट। उसमें उस जजमेंट में ये नहीं देखना इसमें हारा या जीता। डोंट फाइंड आउट दैट कि वो जजमेंट में बीट किया था, इम्पोर्टेंस से ग्राउंड अलाउड किया था, डिवोर्स पिटीशन अलाउड की। डोंट फाइंड आउट दैट। फाइंड आउट कि उसमें दोनों लॉयर्स ने क्या आर्ग्यू किया, क्या पॉइंट लिया, क्या ड्राफ्टिंग किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टेट्स, इफ यू, मैं कलकत्ता का बात करना चाहूंगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स है, बिकॉज ऑफ द उनका जो साहित्यिक जो नेचर है वो हर स्टेट में है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन जो कलकत्ता का मैंने देखा है, मे भी अंग्रेजों का वहां पर बहुत ये था, तो वहां का उनका जो इंग्लिश का जो ये है, उसका अगर लैंग्वेज आप देखोगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट बहुत डीप होता है। सेम चीज मैं एक और जजमेंट बोलना चाहूंगी, जस्टिस चित्रे का जजमेंट है, आप प्लीज लिख लीजिए, ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। इफ यू आर फाइटिंग अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और उसमें अगर मेंटेनेंस की बात आती है, वो लड़की की तरफ से या लड़की की तरफ, एनी ऑफ दिस स्पाउस है, you should know this ममता जायसवाल जजमेंट। एंड जस्टिस चित्रा ने इसको बहुत ब्यूटीफुल लिखा है। इट इज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट, बहुत सुंदर लिखा है। अगर आप इसको पढ़ लोगे ना, सिर्फ अभी भी आप बैठे बैठे साइड में गूगल डाल लोगे, आपको सामने जजमेंट आएगा। मोस्टली 5 या 6 पेजेस जजमेंट होगा, बहुत छोटा जजमेंट है, हार्डली इट विल टेक 20 मिनट। अगर आपको पढ़ना है तो उसमें इतना सुंदर उन्होंने लैंग्वेज लिखा है और इतना सुंदर रीजनिंग दी है। दिस इज व्हाट नाउ कमिंग टू, अगर इंपॉर्टेंस से ग्राउंड किया तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लो, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लो, कोई भी स्टेट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का। मैंने पीआईएल का एग्जांपल दिया कुछ समय पहले आपको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, उसमें वो जजमेंट मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट से ही मिला। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। आप कहीं भी कोशिश करें, आपको अच्छी चीज मिलेगी। शायद आप मेरे आसपास भी आपको मिलेगी। आपका कोई लॉयर फ्रेंड होगा जो जूनियर होगा, लेकिन उसका लैंग्वेज बहुत सुंदर होगा, शायद मेरे से भी बेहतर होगा। बी विद हिम। तो मैंने बोला ना, जो आदमी जो होता है वो अपने आसपास में 5 लॉयर्स का निचोड़ होता है। अगर आप फैमिली में भी 5 लोगों के निचोड़ होते हैं, कोई बहुत चिड़चिड़ करने वाला, आप उसके साथ रहते, फिर चिड़चिड़, कोई बहुत प्यार से बात करने वाला है, उसके साथ रहते हो, आप वैसे बनते हो। तो पर्सन इज नोन बाय कंपनी, तो पर्सन इज आल्सो क्रिएटेड बाय द कंपनी ही। दिस इज व्हाट आई थिंक। नाउ ड्राफ्टिंग बता दिया मैंने, अभी प्रोफेशनल एथिक्स भी है। अब प्रोफेशनल एथिक्स ये एक क्वेश्चन पेपर होता है सुप्रीम कोर्ट एग्जाम में, इसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें देखो, प्रोफेशनल मतलब लॉयर का प्रोफेशन, नेचुरली एथिक्स में आप मोरली कैसे बात करते हो, हाँ, और आप मतलब कैसे, मैंने बताया कि सिंपल चीज है। जब दो लॉयर जब मैटर खत्म हो जाता है, व्हेन यू कमिंग आउटसाइड, हाउ डू यू स्पीक? वो आपका दुश्मन है? नो, इनफैक्ट आपका सामने वाला अपोनेंट क्लाइंट भी दुश्मन नहीं है। आई रिमेंबर इन मैनी मैटर्स आई वाज अप्रोच्ड बाय द अपोनेंट क्लाइंट्स आफ्टर देयर मैटर कोर्ट ओवर कि हमारा दूसरे कोर्ट में केस चल रहा है, आप लड़ोगे क्या? बिकॉज द वे आई यूज्ड टू बिहेव विद देम। अगर मैंने उनको दुश्मन ट्रीट किया, वो मेरे अपोनेंट है, दुश्मन नहीं है, मेरे अपोजिट पार्टी है। ओनली वेयर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कोर्ट रूम, प्रीमाइसेस ऑफ द कोर्ट भी नहीं बोलेंगे, कोर्ट रूम का प्रीमाइसेस में, कोर्ट रूम के अंदर वो मेरे अपोनेंट्स है। देयर माय ड्यूटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी
इज योर ड्यूटी कि वो सामने वाले को जजमेंट फेवर कर, वो जजमेंट भी कोर्ट के नोटिस में आपको लाना है। एज यू विल ग्रो इन फ्यूचर, जब आप बहुत बड़े लॉयर बनोगे तब आपको समझना है कि ऐसा भी होता है क्या, जो जजमेंट मुझे फेवर नहीं करता है, मैं अपने क्लाइंट के लिए नहीं और सामने वाले क्लाइंट के लिए, वो भी हमें कोर्ट में प्रस्तुत करना है, देना है, एंड जजेस अप्रिशिएट इट। उस समय कभी कभी लगता है कि क्या हम अपने क्लाइंट पे अन्याय कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है उसका केस हम नहीं बिगाड़ते, वो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ होता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुल इट टुगेदर ताकि उनमें कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उसने कौन सी परिस्थिति में क्राइम किया है, वो कौन सी परिस्थिति में डिवोर्स चाहता है। आई वॉज अपियरिंग इन अ फैमिली कोर्ट मैटर, तो उसमें वो हस्बैंड और वाइफ दो लोग थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि वो लॉयर जो हस्बैंड का था वो बोला क्या क्रूरल्टी है, 10 साल से अलग रह रही, हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। बट मेरा उसमें एक छोटा सा पॉइंट है उस डिवोर्स पिटिशन में, वो क्या करता था, वो उसके घर पे कभी नहीं आता था, 10 साल अलग ही रहता था, बच्चे काफी बड़े थे उसकी, 20 साल के तो मतलब शादी की हो गए थे, 18 साल के बच्चे थे, वो उसकी बिल्डिंग के नीचे आके खड़ा रहता था। तो वो जज बहुत इंटेलिजेंट थी, वो बोले सी व्हाट इज क्रूरल्टी, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, डिवोर्स पिटिशन में क्रूरल्टी जब आप लिखते हो, वो बोलते उसका वो नीचे खड़े रहना वो भी क्रूरल्टी हो सकता है। सिंपली अगर कोई मेरे को स्टेयर कर रहा है वो भी तो क्रूरल्टी हो सकता है, और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो क्रूरल्टी का इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, डिवोर्स पिटिशन के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो लॉ इतना डेवलप है, मतलब आप उसमें कितना भी डेफिनेशन पे भर सकते हैं। जिसे रेप को डिफाइन किया गया है लेकिन क्रूरल्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। अब राइट टू प्राइवेसी भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं की है। तो ये जब आप लैंग्वेज, जब मैं अब ये लैंग्वेज बोल रही हूँ, आई कांट सी योर फेसेस वेदर आई एम एबल टू इंप्रेस यू और नॉट, लेकिन अगर मैं ये सब बोल पा रही हूँ इट इज ओनली बिकॉज आई हैव रेड। अगर मैंने पढ़ा है तो मैं बात कर पा रही हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू आल्सो, अगर आप भी पढ़ोगे आप मुझसे अच्छा बात करोगे, कोर्ट रूम प्रीमाइसेस में भी, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी, और कभी जब आपको ऐसा लॉयर किसी फंक्शन में बुलाया जाएगा आप बहुत अच्छा बात करोगे। तो प्रोफेशनल एथिक में यही है कि एक लॉयर दूसरा लॉयर कैसे बात करेगा, वो किस तरह से आप उनको मतलब कैसे डील करते हो। आप मुझे एक चीज बताइए कि आप कैसे डील करोगे, वो लॉयर आपको नीचे बुलाता आपको, और आपका क्लाइंट क्या, इट इज योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन क्लाइंट कि वो ही जस्ट पुटिंग अप हिज लॉयर्स। कई बार मैं बाहर आती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि कभी भी, या सामने वाले क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि मैं तुम्हारा पक्ष रख रही हूँ, प्लीज प्लीज आप कभी भी ऐसे मत सोचना कि मैं आपकी दुश्मन हूँ। आई एम जस्ट, कभी कभी हम लोग रफली बहुत बुरे तरीके से बात कर लेते हैं क्लाइंट से, सामने वाले क्लाइंट के बारे में। तो आई जस्ट टेल देम ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट पुटिंग अप माय क्लाइंट्स केस, प्लीज नो, मतलब आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है मेरी। ये एक लाइन बोलने से वो सामने वाला क्लाइंट भी शांत हो जाता है। अगर सामने वाला क्लाइंट आपको देख गया, आपने गुड मॉर्निंग विश कर दिया, आपका क्या नुकसान जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, आपको इतनी छोटी सी चीज भी नहीं जाएगी। गुड मॉर्निंग हो सकता है मैटर सेटल हो जाएगा। आई हैव सीन सो मेनी मैटर सेटल बिकॉज आवर अप्रोच वाज नॉट ऑफ फाइटिंग, आवर अप्रोच वाज टू रिजॉल्व। तो आपको रिजॉल्व की बात करनी है, सॉल्यूशन की बात करनी है। दिस इज वन थिंग आई विल आस्क ऑल ऑफ यू टू लर्न, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय सीनियर्स, एंड आई वांट टू पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन इफ यू कैन। देन देयर इज वन मोर केस, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें आई हैव ऑलरेडी सेड कि आपको सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समय डालना ही डालना है। यू मेक वन, आपको दिवाली वेकेशन जो होता है सुप्रीम कोर्ट में वो 8 डेज का होता है। अभी कोविड का थोड़ा फर्क पड़ेगा, दे विल चेंज इट, लेकिन फ्यूचर में जो भी होगा तो उस समय हाई कोर्ट्स बंद रहते हैं। तो आप साल में एक वीक निकाल के कोई भी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ट्राई टू सिट इन द कोर्ट प्रीमाइसेस, जो मतलब, और वहाँ पर 15 कोर्ट्स है। अगर आपने, और एक साथ कम से कम 10 to 12 कोर्ट्स है ना वर्किंग होते हैं मॉर्निंग में, 1 वीक आप कोर्ट के अंदर बैठिए, उसको समझने की कोशिश। इट डजंट टेक मच ऑफ योर मनी। आप ट्रेन का टिकट बुक कीजिए, फ्लाइट का बुक कीजिए, कोई अच्छे से रीजनेबल होटल में रह लीजिए, कोई रिलेटिव है आपका उनके पास रह लीजिए। बट दिस इज वन ऑफ योर टेम्पल, यू शुड सी। जो आपको सुप्रीम कोर्ट एक बार देखना है, मुझे हमेशा सुप्रीम कोर्ट देखने की इच्छा थी। हाँ, ऑफकोर्स मैं वहां तक पहुंचा, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन वहां तक पहुंचने की आपको कोशिश करनी है। दोज हु आर यंगर टू मी, आई एम टेलिंग यू कि अभी आपके पास जिम्मेदारियां कम है, आपका मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज हो तो बच्चे नहीं है, या फिर प्रैक्टिस का इतना बोझ नहीं सर पे कि कल क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। तो इफ यू हैव टाइम प्लीज गो टू सुप्रीम कोर्ट, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, सागर हैज माय नंबर, आप उनसे लेके मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। इवनिंग 9 to 11 में आई एम फ्री, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, आई एम मोर देन
passing this exam you can become Supreme Court lawyer. And let me tell you, if you pass this exam or if you do not pass this exam, you are still a Supreme Court lawyer, because with any advocate of record on board you can appear in Supreme Court. तो आप appear हो सकते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है. You are still a Supreme Court. Every lawyer is a Supreme Court lawyer. Unless and until आपको बार किया गया Supreme Court से या फिर किसी बार कौन से, तो you are a Supreme Court lawyer. तो आपको सबको खुशी होना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे हमेशा लॉ फील्ड में रखती है कि आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, भोपाल चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कोर्ट्स आर एवरीवेयर. स्पेशली फॉर दी लेडीज, जो लेडीज यहाँ पर बोले, अगर आपकी शादी हो जाती है और आप कहीं पर शिफ्ट भी करते हो तो कोर्ट हर जगह है. इनफैक्ट देश के बाहर भी आप जाते हो, वहां पर भी कहीं कोई छोटी सी लीगल एग्जाम देके आप लीगल को, इंडिया का लॉ तो इतना अच्छा है कि आप कहीं भी चले जाओ. अगर हरीश साल्वे सर को क्वींस काउंसिल बनाया गया है तो इंडियन लॉ को कितना इम्पोर्टेंस है. अगर हमारे इंडिया में पढ़कर ही जो यहाँ पर जस्टिस हुए थे दलवीर भंडारी, और वो अभी इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज है, तो इंडियन लॉ तो सब जगह चल रहा है. आपको मतलब लॉ इज लॉ, लॉ इज रीजनिंग. आपको सिर्फ आपकी रीजनिंग माइंड की अच्छी चाहिए. दिस इज वन थिंग. तो आप अच्छे से पढ़ लो, बस आपको जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए, वो आपके लिए फायदे का है. एंड मोर एक्सपोजर टू द लीगल फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना हो सके, मैटर्स विल कम एंड गो बट योर नॉलेज विल नॉट गो. Only basic requirement, acquire as much as knowledge you can, please. And now I will continue with some कुछ judgments है. We have time, Sagar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can elaborate, and you may take up the session, extend it up to your convenience. I would like all of you to write few judgment. You may be knowing it, लेकिन कॉन्फिडेंस है मुझे कि एक दो जजमेंट आपको नहीं पता होंगे, तो वो आप लिख लीजिएगा. जो पता है वो तो आप नहीं लिखोगे, लेकिन जो नहीं पता है वो प्लीज आप रीड कीजिएगा. एंड दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स है. बहुत सारे जजमेंट्स है. मतलब अगर हम इम्पोर्टेंस लिखते हैं तो बहुत सारे जजमेंट, मतलब क्वालिटी लिखते हैं बहुत सारे जजमेंट निकलते हैं. हम सिंपल इंजूरी लिखते हैं 320 पर आईपीसी, बहुत सारे जजमेंट निकलेंगे. तो जितना आप करोगे उतना कम है. एक सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, उनको जानना ही जरूरी है. अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014. दिस इज अ जजमेंट जिसमें पुलिस का गाइडलाइंस ड्रॉ किया गया है. नॉर्मली आपने देखा होगा कि पुलिस पकड़ लेती है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए समय नहीं मिलता है. तो ये जो जजमेंट है अनिश कुमार का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये है तो 498 का केस, सिंपल 498 है. बट दिस इज वन जजमेंट जिसमें सिर्फ 498 नहीं, ऑल दी अदर ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट इज अप टू 7 इयर्स, अप टू 7 इयर्स है, उसमें ये जजमेंट लागू होगा. एंड पुलिस हैज नो पावर फॉर अरेस्ट. उनको नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 41A सीआरपीसी आपको अपीयरेंस का नोटिस देना पड़ेगा. तो कोई क्लाइंट को फोन आ जाता है, पुलिस बुलाती है, हम अरेस्ट करेंगे. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अनलेस अनटिल, जहाँ ऑफेंस आपको मर्डर रेप में ये लागू नहीं होगा, पर जहाँ 490 है, छोटा मोटा ऑफेंसेस है, 324 है जिसमें 3 इयर्स तक पनिशमेंट है और मैक्सिमम कहीं ज्यादा हो जाती है, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट इतनी, छोटा सा ही झगड़ा है, आपस का झगड़ा है, तो उस समय ये जजमेंट लागू होगा कि उसमें जो गाइडलाइंस है, इफ यू रीड जजमेंट, जो कंसेप्ट विल बी क्लियर. अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ईयर इज 2014. पुलिस की गाइडलाइंस है फॉर अरेस्ट. देन वन रिसेंट जजमेंट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. ये एक ऐसा जजमेंट है, सिंपल है कि उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उसका डिवीजन कैसा होगा और उसमें जो लड़की है उसको क्या राइट्स है. दिस इज व्हाट एज अ लॉयर वी शुड. Probably you may be practicing some other field of the law. हो सकता है आप इसमें आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कुछ लेना देना नहीं. बट इफ एज अ लॉयर आप कहीं भी जाते हो तो यू आर रिप्रेजेंट एज अ लॉयर, तो तुरंत पूछते हैं, अरे अभी लड़की को भी राइट्स मिलता है, तो अगर आपने जजमेंट नहीं पढ़ा तो यू वोंट बी एबल टू स्पीक. यू कैन नॉट से नहीं मैं तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मैट्रिमोनियल स्टूडेंट हूं, मुझे जानकारी नहीं है. यू कैन नॉट. लॉयर को कोई स्टेप नहीं कर सकते, उनको बताना ही पड़ेगा कि वो मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं. दिस इज वन थिंग. देन एक गुजरात हाईकोर्ट से ये जजमेंट ऊपर गया था. दिस इज अबाउट एंटीसिपेटरी बेल. भद्रेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. स्पेलिंग सेट है SETH. ये एंटीसिपेटरी 2016 का जजमेंट है. ये एक ऐसा जजमेंट है जिसमें पूरा एंटीसिपेटरी बेल, पूर्वक सिंधिया से लेके पूरा
अकाउंट, दिस इज वन थिंग। फिर एक निर्भया का केस बहुत फेमस हुआ था, बट मैं यहाँ निर्भया का केस के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं प्रियदर्शनी मट्टू केस के बारे में बात करूंगी। वैसे तो बहुत सारे केस है, जेसिका का भी है, मनु शर्मा का भी केस है। प्रियदर्शनी मट्टू का जो केस है, मैं इसके बारे में आपको एक समझाना चाहती हूँ कि प्रियदर्शनी मट्टू का केस में उसको मर्डर एंड रेप हुआ था उसका, उस लड़की का, एंड शी वाज लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे हम लोग कभी लॉ स्टूडेंट थे वैसे वो भी लॉ स्टूडेंट थी। और ये केस 10 एक साल चला, और इस लड़की का जहाँ पर मर्डर रेप हुआ, इसका जो किया गया था वो टॉप पुलिस ऑफिसर का बेटा था। तो केस में नेचुरली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था, लेकिन इसको अल्टीमेटली उसको डेथ पेनल्टी हुई दिल्ली हाई कोर्ट से, और उसके आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला गया। तो व्हेन यू राइट अबाउट निर्भया, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जांपल, निर्भया केस की जब बात करते हैं तो प्रियदर्शनी मट्टू का केस क्यों भूल जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि बहुत बार, केसेस तो रोज आते रहेंगे। हाथरस का केस हो यूपी में, तो आपको सारी, उन्नाव का केस हो, आपको सारी केसेस की जानकारी होगी। यू वांट टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज। सिर्फ निर्भया का केस नहीं, प्रियदर्शनी मट्टू का भी केस है, 2006 का केस है प्रियदर्शनी मट्टू केस। ये इसमें रेप और मर्डर का ही है, एंड इट वाज वेरी बैडली, मतलब उसको न्याय मिलने में 10 साल लगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ बाद में। देन कभी आपने, मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बात कर रही थी, कभी आपने सुना होगा एक व्हाट्सएप पे एक चीज घूमती है, वो हमेशा ये बोलती है कि एक्सीडेंट हुआ है तो पहले एफआईआर नहीं करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल और या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फर्स्ट दे हैव टू एडमिट द पेशेंट, सी दिस इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ समबडी। कितनी बड़ी बात है, ऐसे लॉयर यू शुड नो। कौन सा जजमेंट है? पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। काइंडली रीड दिस जजमेंट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समझना है, उन्होंने कोई न्यूज़पेपर में कटिंग में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर कटिंग थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बात की, और इट वाज वो, मतलब ये जजमेंट बना कि प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल, हम व्हाट्सएप में हमेशा पढ़ते हैं कि उसको पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए, बाद में एफआईआर होना चाहिए, आपको विटनेस बनना भी जरूरी है। समबडी इज डाइंग ऑन द रोड, समबडी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, somebody is injured, you can take them to the hospital, private public कुछ नहीं देखना है, nearest hospital, and it is the duty of the public or private, हम पैसा दे या ना दे, उनका ड्यूटी है कि उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दिस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट पावर, अंडरस्टैंड। और वो इस रूलिंग मतलब इस जजमेंट का किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है, नहीं तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। सेम अप्लाई टू अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर पुलिस 498 केस या पनिशमेंट जिसमें 7 years तक है अरेस्ट करती है तो उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। लेकिन आप इतना कन्विक्शन से कब बोल पाएंगे? जब आपने अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट पढ़ा होगा। इफ यू आर नॉट रेड तो आप नहीं पढ़ पाओगे। somebody is asking the question कि रेप का कौन सा? प्रियदर्शनी मट्टू का केस है वो। आई विल रिपीट जब क्वेश्चन सेशन चालू होगा वापस से। ये एक जजमेंट्स है। देन एक वन मोर जजमेंट इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स मैं बहुत करती हूँ, इसके लिए आपको बताना चाहूंगी। सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। सरला मुडगल MUDGL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1995 का जजमेंट है। इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले, अभी वो नहीं पॉसिबल है आफ्टर दिस जजमेंट इन पास। अभी तो ट्रिपल तलाक का भी जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट से। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। तो उनका पोर्शन कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन दिस जजमेंट, सरला मुडगल का जजमेंट में क्या हुआ था, इनकी शादी हो चुकी थी। नॉर्मली क्या करते हैं हस्बैंड्स, वो जैसे इस्लाम में 4 शादियां अलाउड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज, अगर कोई इस्लाम तरफ को फॉलो करता है मुस्लिम तरफ को, फिर भी मैं तो वो बोलते थे कि अगर इनको 4 शादियां अलाउड है तो वो लोग क्या करते थे कि कन्वर्टर केस भारती गुजरी राइट। तो उसमें वो सरला मुडगल का केस में वो क्या बोलती थी कि अगर ये हिंदू आदमी अगर इस्लाम कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी शादी कर देता है तो उसको अलाउड है, वो मतलब 4 शादियां भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, क्योंकि एक शादी तो उसकी इलीगल हो गई। अगर हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो धर्म परिवर्तन भी डिवोर्स का एक ग्राउंड है। इफ यू रीड द हिंदू लॉ, आपको उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट तो वो दूसरी शादी कर लेगा ना। तो उस समय ऐसी बहुत बाढ़ आई थी, अगर आपको दूसरी शादी करनी, आपको किसी आदमी को दूसरे लड़की से प्यार हो जाता था तो वो इस्लाम कन्वर्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर एवरीबडी कि नहीं, आप सरला मुडगल का हो गया, अगर आपने इस्लाम कन्वर्ट किया, योर मैरिज विल बी इलीगल एंड आपको बाइगेमी के ऑफेंस में आपको अंदर लिया जाएगा। ऑफेंस होता है, एक हिंदू जब दूसरी शादी करता है उसकी पत्नी जिंदा होते हुए, तो उसको बाइगेमी के ऑफेंस में होगा। तो दिस इज वन थिंग यू शुड नो।
तो केसेस ऐसे बहुत है, वी कैन गो ऑन लाइक दिस फॉर मोर पीरियड, बट देन ध्यान रखिएगा कि जितना हम बता सकते हैं मैंने बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन है, उसके द्वारा बहुत सारे 80% केसेस वही होते हैं। तो थोड़े कोशिश कीजिए कि वेन एवर यू हैव टाइम गो थ्रू दिस मैटर्स। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स पढ़िए, यू रीड हाई कोर्ट मैटर। मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट्स बताया है, मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी जस्टिस चित्रे का जजमेंट बताया। इफ यू रीड दिस जजमेंट्स, और आई मस्ट टेल यू दिस विल आल्सो हेल्प यू टू improve your language, to improve your presentation before the court, and to आपका जो ऑरा है ऐसे लॉयर, इफ यू नो समथिंग बहुत इजी होता है, आपका ऑरा है ना वो इम्प्रूव होता है इन अ वे, आप बहुत सुंदर से अच्छे से कर पाओगे कोर्ट में। तो प्रैक्टिस का सबसे बोलते ना इम्पोर्टेंट चीज है नॉलेज। आपको नॉलेज एक्वायर करना बेसिक चीज है। बाय दिस टुडेज लेक्चर विल बी फ्रूटफुल, इवन वन ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग वन जजमेंट ईच अ डे। अगर एक जजमेंट डे नहीं कर सकते, 30 दिन में एक जजमेंट कर लीजिए। एंड डोंट गो वो जजमेंट जो आपको पास केस है उसी का पढ़ना है, जस्ट उसको। मैं अंधेरी कोर्ट में जब भी थी तो एक सीनियर जोशी लॉयर थे, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि वो मराठी में बोलते थे लॉयर को अवान्तर पढ़ना चाहिए। अवान्तर का मतलब उनका कहना है कुछ भी पढ़ना चाहिए, लीगल मतलब जरूरी नहीं कि लीगल रिलेटेड हो, आप न्यूज पेपर पढ़े उसमें से भी आपको व्यू मिलता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको बहुत व्यूज मिलता है। तो आपका रीडिंग काफी अच्छा होना चाहिए। बट मेरा पर्सनल एक है कि हम इतना समय हर एक को नहीं मिल पाता, एटलीस्ट हम लीगल तो पढ़े, लीगल पढ़ने से भी हमारा नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और हम लोग जब कोर्ट में अपियर हो गए तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, हमारा जो ड्राफ्टिंग लिखावट है इट विल बी बेटर। सेकेंडली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, आई वुड टेल लॉट ऑफ पीपल हैव दोस प्रॉब्लम, लेकिन मैं कहूंगी कि इट इज अ लैंग्वेज को एक दिन में कोई नहीं सीख सकता। इवन आई एम लर्निंग टिल डेट, आई एम टेलिंग यू। जब जस्टिस ठाकुर जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो जब देश में सबके सामने इतने हम्बली बोल सकते हैं कि वी वर आस्क्ड नॉट टू कीप द न्यूज़पेपर डाउन टिल वी रीड 2 new words each day। तो सेम अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस आल्सो कि हमको भी नहीं करना। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, हम कैसे नहीं कर सकते। दिस रिमाइंड्स ऑफ वन मोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दीपक मिश्रा जी। मिश्रा बोलूंगी, मिश्रा नहीं है। आप अगर देखिए ओडिशा में जो होता है MISHRA लिखते हैं, MISRA। देखिए हमको नाम के भी मैंने कई बार लिखा है LLB लिखते हैं, LLB LL.B। तो अगर कई बार मैंने देखा है, अगर मैंने विजिटिंग कार्ड उठाया लॉयर का, उसमें LLB भी गलत लिखा होता है। अगर LLB बेसिक चीज जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप गलत लिख रहे हो, तो आपका इंप्रेशन क्या होगा सामने वाले लॉयर पे, जज पे, और द पीपल यू आर मीटिंग। तो लर्न मतलब लर्निंग इज द बेसिक थिंग। वो क्वालिटी अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो ट्रस्ट मी यू विल गो प्लेसेस इन दिस फील्ड एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। केसेस विल कम, कुछ लोग बोलते केस आएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं ऐसे नहीं है। आपको पहले पढ़ना है, केसेस बाद में आएंगे। जो जर्नी है वो रिवर्स है, पहले आपको पढ़ना है, पहले पढ़ाई करनी है, फिर आप बड़े लॉयर बनोगे। पहले बड़े लॉयर बन के फिर केसेस नहीं आएंगे। एंड व्हाट विल मेक यू बिग लॉयर, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप एक्सपोजर करोगे। एक्सपोजर हो सकता है आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मिले, प्लीज कीजिए। यू मे गेट एन एफिडेविट अ डे, प्लीज मेक एफिडेविट। यू मे नॉट गेट, यू मे गेट अ सिंपल नोटिस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे महाराष्ट्र में कई बार क्लाइंट बोलता है आप मराठी में बनाएंगे नोटिस, कोई बोलता है हिंदी में बनाएंगे, आप गुजरात से बिलोंग करते हो बोले गुजराती भाषा में बनाएंगे। तो somebody does not stop you। गुजराती में भी अच्छी लैंग्वेज लिखी जा सकती है। लैंग्वेज को बोलते हैं ऑर्नामेंटल होनी चाहिए। आई वाज टॉट व्हेन आई वाज लर्निंग ड्राफ्टिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, योर लैंग्वेज शुड बी डेकोरेटिव। लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज रखिए जिस टू बी अंडरस्टूड, लेकिन आपको लैंग्वेज बहुत डेकोरेटिव भी होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेसफुल जितना लाएंगे अपने लैंग्वेज में उसका इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पीकिंग इन सिंपल लैंग्वेज, देयर इज ओके। बट व्हेन आई से oblige sir, when I say grateful sir, I am thankful, जितना आप लैंग्वेज वर्ड्स यूज करोगे। अगर आप नोटिस में कभी कभी हम लोग अपने कलीग को नोटिस भेजते हैं जिसमें सिर्फ कंसेंट का मैसेज, काइंडनेस रिगार्ड, हमेशा ऐसे ही तो बोले थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। कई बार हम लोग ऐसे जब पुलिस ऑफिसर को हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम योर्स फेथफुली लिखते हैं। कैसे योर्स फेथफुली होता है, हम उसके विश्वास के कैसे संपादक है जब हमने कभी देखा ही नहीं, तो वी कैन राइट योर्स ट्रूली। दिस आई हैव लर्न ओवर द इयर्स। जितना आप करोगे उतना, व्हेन यू राइट टू पुलिस योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। ट्रूली का मतलब हम उसको सत्य परिस्थिति बता रहे हैं, हम उसके पुलिस ऑफिसर से झूठ नहीं बोलेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, जब भी आप लीगल प्रोफेशन में तो बोलते हैं यहाँ तो क्या काले का सफेद, सफेद का काला करते हैं, नो नो नो।
हम लोग कोर्ट में सच ही बोलते हैं, हम सिर्फ अपने क्लाइंट का पक्ष, उसके तरफ से उसकी सिचुएशन क्या थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसकी सिचुएशन क्या थी, और व्हाई ही हैज कमिटेड अ क्राइम, व्हाई ही वांट्स अ डिवोर्स, व्हाई ही वांट्स द पार्टीशन, व्हाई ही डज नॉट वांट टू गिव share to his sister, why he does not want to give share to his brother. This is what should be in your mind, and this is the way you should speak. तो आप आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर कीजिए, एंड दैट इज वन थिंग यू शुड नो, और जितना आप अच्छा करोगे उतना आपको फायदा होगा. नाउ आई विल ओवर टू सागर, आप क्वेश्चन सर ले सकते हैं. Okay, ma'am. Ma'am, first question is by Ruby Naidu. I am in the process of giving my completion certificate this month. Is it mandatory that I should be giving my exam immediately, or time can be taken like after one more year? दिस इज अबाउट योर एग्जाम. Yeah, ma'am. नायडू राइट. तो क्या बोलना चाहते हैं, रिपीट कीजिए. तो उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है. I am in the process of giving my completion certificate this month. Is it mandatory? इट इज नॉट मैंडेटरी, बट यू हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्री. जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, प्लीज आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा. Okay. You have to inform them, and you have to give proper reason why you have not appeared. Yeah. So I hope that the question is clear now. You can share my number in chat, no problem. Yeah, definitely now. There is with regard to case laws only that is discussed during the webinar. That the case case's name would be shared with the participants. There's a question by Bharti SYBLS. I am in second year at BLS LLB. So when should I do my internship? Bharti, you should do today itself. आज से कर दें. As early as possible. हाँ, आपको जितना अर्ली पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट थिंग आपको एग्जाम पास करनी है. क्योंकि अगर आपने एग्जाम पे ध्यान नहीं दिया तो आप हमेशा क्लर्क बनी रहेगी. यू विल ऑलवेज बिकम अ क्लर्क. आई टेल माय स्टूडेंट, दोज हु आर इंटर्न, जब भी आपका समय एग्जाम का होता है, प्लीज गो अवे फ्रॉम लीव द ऑफिस, बिकॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पास करनी है. देखिए, इंटर्नशिप यू कैन स्टार्ट एंड नीड नॉट बी विद दिस वेरी सीनियर लॉयर. दिस वन पॉइंट आई वुड लाइक टू. भारती, वेरी क्वेश्चन, इंटर्नशिप कब करनी है, इसके लिए मैं बोलूँगी जब भी आप कोशिश करोगे ना मैडम, तो आप कोशिश यही करना कि पहला 2 इयर्स है जूनियर को, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, नेक्स्ट 3 इयर्स सेशन कोर्ट में, देन ओनली स्टेप इन हाई कोर्ट. आपके पास हाई कोर्ट देखने में, सुप्रीम कोर्ट देखने में कुछ खराबी नहीं है, बट आपको बेसिक कोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बिकॉज अब समझे, आप सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर बन गए, तो एक्सीडेंट का मैटर का ट्रायल तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है. दैट यू शुड नो. तो आपको जानकारी लोअर कोर्ट से होनी चाहिए. व्हेन आई गो टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे पता है चैप्टर प्रोसीडिंग क्या होती है, जो एसीपी के पास चलती है. तड़ीपा एक्सटर्नमेंट प्रोसीडिंग क्या होती है, वो हमें पता होनी चाहिए. इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग, आप कैसे केस लड़ोगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, तो आप जितना बेसिक करोगे उतना आपको फायदा होगा. तो फर्स्ट 2 इयर्स ट्राई टू बिकम अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट. कोई भी लॉयर के पास, डिड नॉट बी कोई नामचीन लॉयर, जो भी लॉयर आपको सिखा सकता है, जो आपको एक्सपोजर है, जो आपको चांस दे रहा है, भले आपका फाइल उठाने के लिए भी चांस दे रहा है, प्लीज गो एंड डू. जरूरी नहीं आपको बॉम्बे आना है, आप जहाँ रहते हैं उसके 10-15 किलोमीटर में छोटा सा भी कोर्ट है, आप प्लीज उस लॉयर के पास उसको रिक्वेस्ट करके उनको बोले कोई सैलरी ना दे, लेकिन उनको बोले सिर्फ मुझे आप एक्सपोजर दे दीजिए, काम सीखने का, आपको उनकी फाइलें भी उठाने को मिलती है, तो बहुत बड़ी बात है. Ma'am, I have a question. There's a dilemma in most of the youngsters and those who are juniors having practiced less than 5 years, that should we start practicing first in the district court, then in the high court, and then in the Supreme Court, or it can be directly approached, Supreme Court can be directly approached. So No. what is the entire reality that can be followed? Like what would be fruitful? अभी वही आंसर दिया मैंने भारतीय केस में, कि फर्स्ट आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टार्ट कीजिए. मोफिजिल कोर्ट से जितना, व्हेनेवर यू स्टार्ट विद मोफिजिल कोर्ट, इट हेल्प्स यू. मोफिजिल कोर्ट में आपको बेसिक सीखने को मिलेगा. आई गिव यू वन एग्जांपल, एक्सीडेंट केस. एक्सीडेंट केस का जो डिसीजन या जजमेंट होगा या जो ट्रायल होगा, वो कहाँ होगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में. देन इट विल बी, अगर अपील हुई तो उसमें सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. द मैटर विल ट्रैवल लाइक दैट. So if you have no knowledge about magistrate court, what you are going to do in Supreme Court, High Court? There is a one judgment in which I read कि उन्होंने बोला भी, बार काउंसिल ने भी कई बार बोला है कि मिनिमम 2 इयर्स, अभी किसी हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया कि मिनिमम 2 इयर्स आपको ट्रायल कोर्ट में निकालना है. और ट्रायल कोर्ट 2 होते हैं, सेशन कोर्ट लेवल एंड दी मैजिस्ट्रेट कोर्ट लेवल.
तो आपको, और अगर आप ऑफिशियल गांव के एरिया में तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पे होता है, तो आपको वहां पर आपको 2 साल निकालना है, नेक्स्ट 3 इयर्स ट्रायल कोर्ट में। इसके बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो बार ऑन यू, या यू कैन नॉट विजिट, बट आपका जो प्रैक्टिस एरिया है वो स्टार्टिंग का 5 इयर्स आई वुड सजेस्ट दैट यू बिकम अ गुड लॉयर। दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 5 इयर्स, बट उसका जो बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मिलेगा। आज मेरा ट्रायल कोर्ट का प्रैक्टिस बहुत, उनसे आई वुड से कि मुझे पूरी जानकारी है, नोबडी कैन, आई केम बैक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन वन मैटर इन ट्रायल कोर्ट। तो वो कोर्ट कारकुन जो होते हैं पुलिस, इसमें वो लोग पुलिस के बीच में और कोर्ट के बीच में चेन होते हैं, ही वाज टेलिंग मी समथिंग, तो मैंने उसको समझाया अपनी भाषा में कि आप जो बोल रहे हो ना ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ही जस्ट सॉ मी, उसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट से आई जिसको पता नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं है। बिकॉज मैंने उसको बोला मैंने 12 साल यही प्रैक्टिस किया, एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज आल्सो कन्विंस कि अरे इसको तो सब पता है, एंड आई रेफर सम जजमेंट, उसकी वजह से मुझे अच्छा ऑर्डर भी मिला। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप नीचे से ऊपर जाओ, डोंट अप्रोच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपको बेसिक ही नहीं पता है। आपको इट इज एज सिंपल एज आपको मतलब अगर आटा गूंथना और रोटी बेलना ही नहीं आता, रोटी सेकना, तो बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। इफ यू डोंट नो द बेसिक देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल एट द टॉप लेवल। तो बेसिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑफिशियल जेएमएफसी कोर्ट, आपके 7-8 किलोमीटर के नजदीक का जो भी कोर्ट है आप वहां जाइए, कोशिश कीजिए और पढ़िए प्लीज। Right, ma'am. Ma'am, there's another question. For Supreme Court lawyer to become a Supreme Court judge, is there any exam or practice only? सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनने के लिए एडवोकेट ऑफ रेकॉर्ड एग्जाम पास करोगे तो आपका वेबसाइट में भी नाम रहेगा, यू कैन फाइल दी वकालतनामा एंड साइन दी प्लीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑफ रेकॉर्ड का परमिशन लेके आप अपीयर हो सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट वे यू कैन बिकम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। फॉर सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होती है, दे आर पिक्ड अप, जो नॉलेजेबल होते हैं उनको पिकअप किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमेशा जजेस जो होते हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, और उसको प्रेसिडेंट से या गवर्नर से वारंट आता है। वारंट हम लोग नॉर्मली बोलते हैं चेक बाउंसिंग केसेस में या पुलिस केस में वारंट निकलता है ना, वैसे नहीं होता है। वारंट का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रेसिडेंट का साइन का वारंट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओथ सेरेमनी होता है, वैसे होता है। Right. Ma'am, like for AOR exam, I would like to ask you that minimum how many judgments, like as a brief note, you can say that it is to be referred. जो रिपोर्ट उन्होंने एग्जाम के सिलेबस में दिए वो 45-52 के करीब होते हैं, बट सी व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड आउट योर लीगल नॉलेज, तो यू कैन नॉट से आई डू नॉट नो द प्रियर क्वेश्चन इन मल्टीपल केस, आई डू नॉट नो द अनिश कुमार मे नॉट बी इन दी इसमें आपके पोर्शन में नहीं होगा, लेकिन अनिश कुमार से स्टेट ऑफ बिहार लैंडमार्क तो अरे आपको जानकारी नहीं है, तो अगर उसमें स्पेशल पिटीशन बनाने को आगे ड्राफ्टिंग के पेपर में और उसमें 490 का केस आ रहा है, अगर आपने अर्निश माला से स्टेट ऑफ बिहार नहीं लिखा तो हाउ दे एग्जामिनर नो कि आपको नॉलेज है, तो शो दैट यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट लॉ। आपको एग्जाम पास करनी है ना, तो आपको ये बताना ही बताना है, आप नहीं बताओगे तो कैसे में होगा। दिस इज व्हाट यू शुड टेल। इसके लिए मेरा कहना है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी। तो हाउ मेनी जजमेंट, उसका कोई मैंने बोला एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट इज लीगल यू हैव टू नो इट। Thorough knowledge. जजमेंट हाँ, जैसे इंडियन कार्बाइड भोपाल केस, भोपाल ट्रेजेडी केस है, वो सबको पता है, और नॉर्मली वो आपके एग्जाम में भी था। विशाखा गाइडलाइंस का केस है, नाउ देयर इज अ लॉ लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होगा, उसके बारे में लॉ लेड डाउन है, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस का नॉलेज होना चाहिए, दो दे आर ऑफ एक्रेमिक नेचर टू है। अब विशाखा गाइडलाइंस का वैसे लीगली एनफोर्सेबल मतलब नहीं रहते हैं, बिकॉज लॉ आ गया। जब तक लॉ नहीं था तो विशाखा गाइडलाइंस से काम चला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट लॉ भी लेट डाउन करता है व्हेन देयर इज नो लॉ। बहुत सारे Right, ma'am. So, I think, is there any questions? More questions from participants? Then we can take it up. Ma'am would be answering it. Yes, ma'am. I have a question. Like AOR exam is conducted how many times a year? Like once in a year? Once in a year. Okay. मोस्टली इन जून फर्स्ट वीक, और उसका नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट से मिल जाता है। आप थोड़ा सा वेबसाइट सर्च करोगे ना सुप्रीम कोर्ट का, एवरीबडी
आपको बहुत नॉलेज मिलेगा उसमें, जजमेंट्स भी मिलेंगे, वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। Right, ma'am. So I think there's no much more questions upcoming from the participants, as everything is crystal clear. So, ma'am, now we would be concluding with the webinar with your permission. Sure, sure. Thank you so much. Thank you, everybody. Ma'am, there's a question for you. Have you done specialization in criminal law? स्पेशलाइजेशन नहीं क्या होता है उसमें, लेकिन मैंने क्रिमिनल लॉ में काफी काम किया है। मैं 12 साल ट्रायल कोर्ट की लॉयर रही हूँ। अभी किसी का सवाल था ना, किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, मैंने 12 साल ट्रायल कोर्ट में काम किया। 12 इयर्स मैंने बहुत रफली काम किया है पुलिस के साथ और इनके साथ, बहुत मतलब डीपली काम किया है, कोई काम नहीं छोड़ा, मतलब श्योरिटी का हो कुछ भी हो, मतलब मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहूंगी कि क्रिमिनल के साथ काम किया, लेकिन जब हम क्राइम क्रिमिनल का प्रैक्टिस तो साथ में क्रिमिनल था, मैंने उनसे वो तो इन्वाइट नहीं किया, लेकिन मैंने उनको जाना है कि कैसे होता है क्राइम, कैसे होता है, तो आपको बहुत नॉलेज भी मिलता है। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना, ये भी ये एक चीज है। और दूसरा वो सिचुएशन रहता है, जैसे आई रिमेम्बर एक मैटर में, क्रेडिट कार्ड का मैटर था, किसी ने किसी का चोरी करके शॉपिंग कर लिया था, और वो लड़का शॉपिंग करके उसकी बीवी या उसको वो ना ये देता था, गिफ्ट देता था, तो वो लड़का चला गया, लेकिन वो लड़की ने भी एक बार वो कार्ड यूज किया था, उसको पता नहीं था चोरी का कार्ड, तो उसको भी पकड़ लिया गया था। एंड व्हेन शी वाज अरेस्टेड, शी वाज नॉट नोइंग दैट कार्ड चोरी का है या उसके हस्बैंड का नहीं है, तो वो इतना रो रही थी कोर्ट में, मतलब। और जब उसको पुलिस कस्टडी थी 5 दिन की, तो वो बोली मैंने क्राइम क्या किया है, ये तो मेरे पति का कार्ड, और पति ट्रेसेबल नहीं है। तो दिस आर द इमोशंस यू गो थ्रू। तो आपको कितना मतलब पर्सनली आपको कितना सीखने मिलता है। कल ही मैंने एक बेनामी मतलब प्रॉपर्टी पे जो लेक्चर लिया था, इफ एनी ऑफ यू अटेंडेड, तो उसको भी करने से मुझे कितना नॉलेज मिला पर्सनली। मैं बेनामी प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, जब मैं प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मैं कितना ध्यान रखूँ। तो ऐसे लॉयर, जब आप मेरे पास कई बार लॉयर्स का फोन आता है कि मैंने वहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, 9 महीने में डबल हो गए। यू आर लॉयर्स, काइंडली रीड द लॉ। 9 महीने में डबल होने का कोई चांस ही नहीं है। ये कई बार हम लोग बिल्डर के पास हम लोग कुछ इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमको फ्लैट मिलेगा। तो आप लॉयर हो, तो यू आर एन एग्जाम्पल। आप ही ऐसा करोगे तो आप क्लाइंट को क्या सलाह दो। तो दीज आर दी, वो लड़की से मैंने क्रेडिट कार्ड का सीखा। टिल डेट आई डो नॉट हैव द क्रेडिट कार्ड, कि मुझे मालूम है क्रेडिट कार्ड के रोज झगड़े होते हैं, रोज क्या हो, मतलब किसी ने, आई हैव अ जूनियर इन माय ऑफिस जिसका 2 बार डेबिट कार्ड से पैसे उठा लिए। तो मैंने बोला कि जब हमारा ये हाल है तो कॉमन है, तो मैं रोज ये देखती हूँ कि जब इतना प्रॉब्लम्स होता है तो आप क्या करो, मतलब आपको यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस। कई बार आपको आपका लीगल फील्ड आपको है ना उम्र से ज्यादा बड़ा कर देता है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि आपको मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, क्लाइंट का बनना पड़ेगा। तो दिस इज द वे अपना इमोशंस भी करता है। 12 साल मैंने ट्रायल कोर्ट का प्रैक्टिस किया है। देन आई वांट टू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट एंड आई स्टिल गो बैक टू ट्रायल कोर्ट। आज भी मैं ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस करती हूँ। एटलीस्ट आई वुड लाइक टू, मतलब मैं राम जेठमलानी सर को यहाँ पर कोर्ट करूंगी। वो जब मैं दिल्ली गई थी तब भी मैंने देखा वो बॉम्बे में भी कोई ट्रायल कोर्ट में आए थे और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट तो हमारा बेस है लॉयर का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट का लॉयर्स आर द स्टार लॉयर्स, क्योंकि आप तो बेस क्रिएट करते हो ना। ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रायल कोर्ट के लॉयर को मैं बहुत रिस्पेक्ट दूं। मैं खुद, मैं हर मतलब माई सेल्फ भी 12 years मैंने प्रैक्टिस किया और आज भी मुझे अच्छा लगता है प्रैक्टिस का। क्रॉस एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन webinar on the cross examination. I'll speak to Sagar how whether we can do it on this cross examination. जितना मुझे आता है मैं वो कंडक्ट करने का कोशिश करूँगी। आप उससे शेयर करने का कोशिश करो। Sure, ma'am. Ma'am, there's one more question. Like from all the 5 papers, if one paper is not clear, 4 papers. The question is, if in case one paper is not clear, then have to appear in all the 4 papers? Okay, this you have to again go and check on the website. जो मेरा information है और अभी तक इसमें बदलाव नहीं हुआ है to my knowledge, कि 4 papers each paper carries 100 marks. Minimum आपको 60 marks होना चाहिए, minimum 50 और maximum तो आप कितना भी ले सकते हो। तो 60 एग्रीगेट होना चाहिए, 60 मतलब 240 टोटल आपका 240 होना चाहिए।
हो सकता है किसी केस में आपको 49 मिला है तो आपको फेल कंसिडर किया जाता है, और 50 240 के बदले टोटल में आपको मतलब मिनिमम 50 आपको हर पेपर में मिलना है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर तो इतना तो इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, इतना लीगल नॉलेज होना चाहिए। तो 50 हो गया, और किसी में आपको आपका एग्रीगेट है ना 240 के बदले 238 हो रहा है, और 2 मार्क्स के लिए भी आपको एक पेपर उसमें चॉइस करना है, तो बिलो 50 मिला तो आप फेल हो जाओगे। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन इन दैट व्हिच आई हैव नॉट गॉन थ्रू। उसमें ऐसा भी है कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको सब पेपर में 20 के बिलो मिल गया है, तो आपको तो एग्जाम भी अपेयर नहीं होने देंगे। दीज आर सम रूल्स। लेकिन एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, डोंट थिंक ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, कितना मैं फेल होंगी, कितना मैं पास होंगी, देयर इज नो ऑप्शन। आर्मी वालों का ऑप्शन होता है क्या कभी? जाके लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है या चाइना से लड़ना है, तो ट्रीट दिस एग्जाम एज कि हमको अपना फुल अटेम्प्ट करना है और जीत कर वापस आना है। पूरा चारों पेपर क्लियर करने के लिए एग्जाम देना है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देयर वाज मिस नायडू, उन्होंने बोला कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। अनलेस अंटिल यू आर प्रिपेयर्ड, प्लीज डू नॉट अपीयर, क्योंकि एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, और इमरजेंसी के लिए 2 अटेम्प्ट आप रखोगे। डोंट डू दिस। दिस इज नॉट समथिंग आप चांस लेना चाहते हो लाइफ में, दिस इज ट्रीट दिस एज योर लाइफ। आपके लाइफ का गोल है, और फेल होके आना क्या घर में वापस अच्छा लगता है, आपका मोरल भी डाउन होता है। तो नेवर फेल इन दिस एग्जाम। ट्राई कि आप बहुत कोशिश करो कि आप अच्छे से पढ़ के, एंड आई विल टेल यू, नॉट ओनली मी, देयर आर मेनी पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हु विल हेल्प यू इफ यू आर इंटरेस्टेड। आई विल हेल्प इफ यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन मैं जजमेंट नहीं पढ़ सकती, जजमेंट आपको ही पढ़ना। आज मैंने 4-5 जजमेंट बता दिए, अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आई कांट हेल्प यू, यू हैव टू रीड। आपको पता ही होना चाहिए एग्जाम। जैसे कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। उनको किस तरह के क्लाइंट्स आएंगे उनके पास, वो खुद ही सोच रहे हैं, क्योंकि लॉ इज नॉट आफ्टर ऑल ओनली अर्निंग मनी, होर्डिंग मनी। इज आफ्टर, आपको रिस्पेक्ट भी कमाना है, आपको बड़ा लॉयर भी बनना है, और बड़ा इन द सेंस ऐसा, सी इट इज ऑलवेज सेड you have to follow your word, money will follow you. Same applies in the legal field also, profession also. Right, ma'am. So, ma'am, there's a request in the chat box that in future, ma'am, would you be taking up a webinar on landmark judgments of the Supreme Court? Sure. Anytime. सागर से पूछ लीजिए, सागर बोलेंगे तो कर लेंगे। सागर ही पूरा मैनेज कर रहा है। Yeah, so Surely. I would love to. You just give me 1 week's time in advance. Okay, ma'am. So, ma'am, I hope that all the queries of the participants are resolved. They do not have any questions much anymore. And on that note, with your permission, we would be concluding. So, ma'am, I, Sagar Jadhav, on behalf of entire Legal Savior Group, thank you, and we are overwhelmed to have you at Legal Savior, that you shared your knowledge with us and the participants, and we look forward that you would be joining us in future too. Sure. Anytime. Thank you so much for Thank you. giving me this opportunity. I'm thankful to all the participants, and all the best to all of you, and I'm always available. You can connect with Sagar. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you all.